واسا کا سیوریج سروسز چارجز میں بڑا اضافہ، شہریوں اور بلڈرز پر نیا مالی بوجھ۔ لاہور میں تعمیرات مہنگی، سیوریج چارجز بڑھنے سے کنسٹرکشن سیکٹر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ واسا کی نئی پالیسی، ایک کنال عمارت پر سیوریج چارجز 8,87,000 سے شروع۔ ایک کنال کی سنگل سٹوری عمارت کے لیے سیوریج چارجز 8,87,000 روپے مقرر۔ ڈبل سٹوری عمارت کے لیے سیوریج چارجز 9,37,800 روپے مقرر ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے۔ سیوریج سروسز آگمنٹیشن چارجز میں یہ بڑا اضافہ کرتے ہوئے شہریوں اور بلڈرز پر نیا مالی بوجھ ڈال دیا ہے۔ لاہور میں تعمیرات مہنگی کرتے ہوئے سیوریج چارجز بڑھنے سے کنسٹرکشن سیکٹر متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ واسا کی طرف سے جو نیا نوٹیفیکیشن اور نئی پالیسی جاری کی گئی، اس کے مطابق اب ایک کنال کی جو بلڈنگ ہے اس پر سیوریج چارجز 8,87,000 روپے سے شروع ہوں گے، جبکہ کثیر المنزلہ عمارتوں پر چارجز مزید بڑھا دیے گئے ہیں اور ہر اضافی منزل پر اضافی فیس لاگو کی جائے گی۔ LDA گورننگ باڈی فیصلے کی روشنی میں واسا نے سیوریج سروسز آگمنٹیشن چارجز کے نئے ریٹس جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق ایک کنال کی سنگل سٹوری عمارت کے لیے سیوریج چارجز 8,87,000، جبکہ ڈبل سٹوری عمارت کے لیے سیوریج آگمنٹیشن چارجز 9,37,800 روپے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 3 منزلہ عمارت کے لیے سیوریج چارجز 9,88,000، 4 یا 5 منزلہ عمارت کے لیے سیوریج سروسز آگمنٹیشن چارجز 10,90,100 روپے، جبکہ 5 منزل سے زائد ہر اضافی منزل پر 10% اضافی چارجز وصول کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کی روح سے نئے ریٹس 15 جولائی 2026 تک نافذ العمل رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق MRS آئٹمز کی قیمتیں بڑھنے کی صورت میں چارجز مزید بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ یہ جو نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کے اوپر کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ نئے سیوریج چارجز سے گھروں اور عمارتوں کی تعمیر مزید مہنگی ہونے کا اندیشہ ہے۔ شکریہ زین آپ کا۔ مہنگائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ مہنگائی کے چکی میں پسے عوام کو کہیں ریلیف نہیں ملا۔ سبزی میں پیاز اور ٹماٹر 90، جبکہ لہسن 640، ادرک 420 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھلوں میں کیلا 280 روپے اور کنو 450 روپے کے درجن بک رہے ہیں۔ انار کنہاری 850، کھجور ایرانی 560 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عبدالقادر۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ آج بالکل رمضان المبارک میں سرکاری نرخناموں کا استحکام جو ہے وہ جاری ہے، یعنی کہ سرکاری ریلزوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا رہا، قیمتیں مستحکم رکھی جا رہی ہیں، لیکن مارکیٹ میں صورتحال جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ آج جو ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں پیاز کی قیمت 60 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری پیاز یا خشک پیاز جسے کہا جاتا ہے وہ 80 سے 90 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر کی قیمت 65 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ درجہ اول کے ٹماٹر کی قیمت ہے جو سرکاری ریلیز میں مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری ٹماٹر جو ہے 90 سے 100، جبکہ مکس درجے کا ٹماٹر جو ہے 70 سے 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو لہسن ہے 530 روپے فی کلو ہے، لیکن مارکیٹ میں 640 سے 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 280 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 420 سے 440 روپے فی کلو تک ادرک کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اور موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آلو جو ہے اس کی قیمت 20 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں ہے، لیکن مارکیٹ میں آلو جو ہے 40 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور پھلوں کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو سیب کالا کولو پہاڑی جو ہے 420 روپے، یہ سرکاری ریلیز میں پہلے روزے سے آج تک 420 روپے فی کلو ہی ہے، لیکن مارکیٹ میں یہی پہاڑی سیب جو ہے 520 سے 540 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 240 روپے فی درجن ہے، مارکیٹ میں 280 سے 300 روپے درجن تک درجہ اول کا کیلا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح امرود 145 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں امرود کی فروخت جو ہے 280 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ بعض مقامات پر درجہ اول کا امرود 300 روپے فی کلو تک بھی فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکاری ریلیز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہر علاقے کا ہر دکان کا ریٹ الگ ہے، معیار کا ریٹ الگ ہے، کوالٹی کا ریٹ الگ ہے، یعنی کہ اگر کوالٹی اور معیاری اشیاء چاہیے تو اس کے لیے قیمتیں بھی زیادہ خرچ کرنی پڑیں گی، جبکہ جو سرکاری ریلیز ہے اس میں تو قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، مارکیٹ کی قیمتیں جو ہیں مسلسل تیزی کا شکار ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بچوں کو عیدی دینی ہے تو نئے اور کرارے نوٹ لینے پڑیں گے۔ بینکوں سے محدود اور مختلف شرائط پر نئے نوٹوں کی تقسیم جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں نئے نوٹوں کی بلیک میں فروخت 10 روپے والے نئے کرنسی نوٹ کی کاپی 600 سے 700 روپے اضافی ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ 100 روپے کے نوٹوں کی کاپی 800 سے 1000 روپے اضافی پر مل رہی ہے۔
मज़ीद जान लेते हैं, साहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। साहिद बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है और एक नया सा त्यौहार होता है। रोज़ों के बाद हर शख्स की कोशिश होती है कि कुछ नया हो जाए ईद उल फितर के मौका पर। आजकल डिमांड हो रही है लोगों की वो नए करेंसी नोट है। जब इस बारे में लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं चूँकि सब कुछ एक नया सा माहौल होता है, नए कपड़े पहने होते हैं, नए जूते पहने होते हैं, तो अगर जेब में नोट भी नए हो ईदी देने के लिए तो उससे मज़ा दोबाला होता हुआ नज़र आता है। लेकिन बैंक इनकी ज़रूरत पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादातर लाहौर शहर में मुख्तलिफ मार्केटों में और मुख्तलिफ सड़कों पर नोट फ़रोख्त करने वाले नज़र आ रहे हैं। जिसमें 10 रुपए की जो कापी है जिसमें 100 नोट होते हैं वो 600 से 700 रुपए इजाफी अदा करके फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 20 रुपए की नोटों की कापी जो वो 700 से 800 रुपए इजाफी पर दस्तयाब है। इसी तरह 50 रुपए के नोट की कापी जो है वो 1000 से 1200 रुपए इजाफी अदा करके सारफ ख़रीद सकता है बाहर से, जबकि 100 रुपए वाली कापी जो है वो तकरीबन 800 से 1000 और कहीं कहीं 1200 रुपए तक भी इजाफी में मिल रही है। इसकी वजह यह है कि जो बैंकों की जानब से तरीकाकार दिया गया था कि मैसेज करें और आपके अपने अकाउंट के बैंक से जाकर अपने हिस्से के नोट वसूल करें, वो इतना महदूद और मुश्किल तरीकाकार है कि ज़्यादातर लोग उस पर इंसार नहीं करते और लोगों की कोशिश है कि जो जितने भी नोट ख़रीदने हैं वो ओपन मार्केट से ख़रीदें, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में आम दिनों के मुकाबले में भी रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी शुक्रिया जाहिद आबिद। अभी वक्त पर ब्रेक का उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ पड़ा। डायरेक्टर पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि मोहम्मद अल्ताफ लोच को SNGA रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आसिफ रहमान डायरेक्टर स्टेट लैंड को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का इस्ताफी चार्ज भी तफवीज़ कर दिया गया है। आपको हम खबर से क्या करें, मोहम्मद अल्ताफ बलोच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन को ओहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद अल्ताफ बलोच को SNGA रिपोर्ट करने का हुक्म, आसिफ रहमान डायरेक्टर स्टेट लैंड को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको अहम खबर से क्या करें, मोहम्मद अल्ताफ बलोच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन को ओहदे से हटा दिया गया है। ईरान इसराइल जंग के बायस परवाज़ों का ख़राब निज़ाम ठीक ना हो सका। पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुकम्मल बहाल ना हो सका। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक आज भी कुवैत, बहरीन, अमारात, ईरान, इराक और कतर आने और जाने वाली 90 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। 17 रोज़ में मनसूख फ़्लाइट्स की तादाद 1955 तक जा पहुँची हैं। आपको बता रहे हैं कि आलमी जंग के बायस 90 परवासें मनसूख हुई हैं। ईरान इसराइल जंग के बायस परवासों का खराब निज़ाम ठीक नहीं हो सका। पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुकम्मल बहाल नहीं हो सका। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक आज भी कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक और कतर आने और जाने वाली 90 परवासें मनसूख हो गई हैं। 17 रोज़ में मनसूख फ़्लाइट्स की तादाद 1955 तक जा पहुँची है। आपको बता रहे हैं ईरान इसराइल जंग के बायस परवासों का ख़राब निज़ाम ठीक नहीं हो सका है और पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुकम्मल बहाल नहीं हो सका, जबकि एयरपोर्ट सराय के मुताबिक आज भी कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक और कतर आने और जाने वाली 90 परवासें मनसूख हुई हैं। 17 रोज़ में मनसूख फ़्लाइट्स की तादाद 1955 तक जा पहुंची है। आपको बता रहे हैं ईरान इसराइल जंग के बायस परवाज़ों का ख़राब निज़ाम ठीक ना हो सका। पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुकम्मल बहाल ना हो सका। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक आज भी कुवैत, बहरीन, अमारात की परवाज़ें मंसूर। शाह कमाल की अराज़ी की नीलामी ताहुक्म सानी रोक दी है। सेक्रेटरी औकाफ और DG औकाफ से 15 अप्रैल को शिकवार जवाब तलब जस्टिस शुजात अली खान ने साबिक चेयरमैन दरबार कमेटी मोहम्मद असलम की दरख्वास्त पर समाअत की है। तफसीलात बताने अबूबकर तारिक। जी अबूबकर बताइएगा। शाह कमाल की अराज़ी नाम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने इस्लामी ताहुक्म सानी रोक दी है, जबकि अदालत ने सेक्रेटरी औकाफ और DG औकाफ से 15 अप्रैल को शिकवार जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शुजात अली खान ने साबिक चेयरमैन दरबार कमेटी मोहम्मद असलम की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त की तरफ से गुलाम हुसैन एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में तैयार किया गया कि बहादुर रोड पर मोहम्मद शाह कमाल का दरबार 8 कनाल पर मौजूद है। दरबार के अंदर लंगर खाना और ज़ायरीन के बैठने की जगह है, जबकि महकमा औकाफ ने दरबार की 6 कनाल वादी की निज़ामी का इश्तिहार दिया है। महकमा औकाफ 6 कनाल वादी पर दरबार को बनाया जाता है। दरबार की वादी निज़ाम नहीं हो सकती। अदालत ने इस्तदा की है कि अदालत को निज़ामी का हुक्म कलाज़म करार दे, जबकि अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। शुक्रिया अबूबकर आपका।
और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल फितर की आमद है और चंद ही रोज़ बाकी हैं। मुसाफिरों की आमदरफ्त में भी बतदरीज इजाफा होने लगा है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए 4 ई स्पेशल ट्रेनें चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। आज पहली ई स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची रवाना होगी। शेड्यूल दे दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी, जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस की बोगियां शामिल होंगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना की जाएगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन भी 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए चलाई जाएगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का मकसद मुसाफिरों को उनके आबाई इलाकों तक बाआसानी पहुंचाना है। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ईद के करीब आते ही ट्रेनों में रश मजीद बढ़ने का इम्कान है। मुसाफिरों को पेश की टिकट हासिल करने की हिदायत भी की गई है। और ईद उल फितर करीब आते ही शहर के बाजारों में रौनक अरूज पर मिठाई और फेमियों की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी अपने प्यारों के लिए ईद की फेमियां और मिठाइयां खरीदने में मसरूफ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईद की आमद के साथ ही बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। मिठाई और फ्योनियों की दुकानों पर रश। शहरी अपने प्यारों के लिए ईद की फ्योनियां, मिठाइयां और दीगर मीठी अशियां खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद पर लोग अपने अजीजों अकारिब के लिए खसूसी तौर पर मिठाइयां खरीदते हैं कि ईद से पहले हम खास तौर पर मिठाई और फ्योनियां खरीदते हैं ताकि सब रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब के साथ खुशियां बांट सकें। रिश्तेदार हो गए, बहन भाई, इनके बगैर फ्योनियां तो इनको देनी है। ठीक है, मिठाई हो गई, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। मीठा ना हो ईद पे इस तरह तो हो नहीं सकता। तो ये जो है ना, मेरे हिसाब से तो रिश्तों को बढ़ाएंगी। इतनी मज़ेदार चीज़ है। हम तो फ्योनियाँ लेने के लिए आए हैं और साथ मिठाई भी। आपको पता कि फ्योनियाँ और मिठाई दे के जज्बा बढ़ता है, ईद का खुशी बढ़ती है, इसलिए उनके लिए हम लेने के लिए आए हैं। मैं ईद के दिन अगे जाते 4-5 तो रिश्तेदारों भैन भरावां फेनियां देनी होंदी, कोई मिठाई देनी होंदी है, कोई नकदी नाल चलो बंदा खुशी होंदी है बच्चों को खुशियां देने वास्ते, तो फेनियां वास्ते आए दिन तिहार वास्ते। दूसरी जानिब बाजारों में दूसरी अशिया के साथ साथ मिठाइयों और फ्योनियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बैक आपको बताएं कि वर्कर्स वेलफेयर फंड की मुबैना गफलत सामने आई है। कई सालों से वर्कर्स के बच्चों की मैरिज ग्रांट्स जारी नहीं हो सकी हैं और केस मंजूर होने के बावजूद 2000 से ज़ायद केसेस मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं। मुत्तहदा लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ रामी कहते हैं कि ईद से पहले ग्रांट्स जारी की जाएंगी। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्कर वेलफेयर फंड की जानिब से रजिस्टर्ड वर्कर्स को मुख्तलिफ ग्रांट्स दी जाती हैं, इसमें मैरिज ग्रांट भी शामिल है। लेकिन कुछ अरसे से ये मैरिज ग्रांट के केसेस जो हैं वो मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं। क्यों ये इल्तवा का शिकार है और वर्कर्स को क्या कहा जा रहा है, ये जानते हैं लेबर रहनुमा हनीफ रामी हमारे साथ मौजूद हैं। रामी साहब, ये कितने केसेस हैं और कब से इल्तवा का शिकार है और WWF क्या कह रहा है? देखें जी, ये जो पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की तरफ से, हालांकि पहले तो वैसे ही बड़े डिले हो रहे थे, केस लेट हो रहे थे, लेकिन पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की तरफ से एक नया सिस्टम शुरू किया गया। उन्होंने कहा जी कि हम वर्कर्स को ऑनलाइन जो है ना वो पेमेंट करेंगे, और हमने इसको सपोर्ट किया। हमने कहा चलो अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये कि जब ऑनलाइन लोगों को वो उन्होंने पेमेंट भेजी तो वो आगे से आना शुरू होगा कि अनसक्सेसफुल, यानी कि उनको जो है ना पेमेंट नहीं मिल रही। अब तकरीबन किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीने हो गए हैं और लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही। ईद सर पे आ गई है। हमारी गुजारिश ये है कि जिन लोगों के अनसक्सेसफुल आ रहे हैं उनको चेक जारी कर दिए जाएं। और ये जो सिस्टम है, ये मैंने देखा है कि हम तो ये समझते हैं कि ये सिस्टम इनका नाकाम हो चुका है, वर्कर इसमें परेशान है, और 2000 से ज़्यादा जो है ना वो वर्कर ऐसे हैं जिनको जो है ना वो पेमेंट नहीं मिल रही। हनीफ रामी बता रहे थे कि 2000 से ज़ायद केसेस हैं जो मैरिज ग्रांट के जो निपटाए नहीं जा रहे। तमाम तर जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क़वायद ज़वाबित भी पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन नया सिस्टम जो लाया गया है उसकी वजह से वर्कर बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। और ये डिमांड की गई है कि ईद से पहले ये केसेस को हल किया जाए और जो ग्रांट्स हैं वो वर्कर्स के अकाउंट में मुंतकिल की जाए। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब भर में साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चलान के पैगामात मौसूल होने लगे हैं। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल नंबर 9915 से जाली चलान लिंक के साथ SMS मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के शहरियों को मशकूक लिंक्स ओपन ना करने और मालूमात शेयर ना करने की हिदायत भी की गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब भर में साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक हैं। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चलान के पैगामात मौसूल होने का सिलसिला जारी है। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस का ऑफिशियल नंबर 9915 से जाली चलान लिंक के साथ SMS मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के शहरियों को मशकूक लिंक्स
ओपन ना करने और मालूमात शेयर ना करने की हिदायत भी की गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब भर में साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक हो चुके हैं। लेस्को MNT सेंट्रल सर्कल की कार्रवाई सामने आई है। इस्लामिया पार्क में 2,15,000 से ज्यादा यूनिट्स की बेसाबगी पकड़ी गई है। MNT सेंट्रल सर्कल की टीम लेस्को हेडक्वार्टर मधु, जबकि कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी गई। CEO लेस्को की जानिब से टेस्ट असिस्टेंट M रऊफ भट्ट की हौसला अफजाई भी की गई है और M रऊफ भट्ट को शील्ड भी पेश की गई, जबकि तारीफी सनद और गुलदस्ता भी पेश किया गया। तफसीलात बता रहे हैं फहद अमीन। जी फहद, बताइएगा। की सेंट्रल सर्कल की जानिब से सावे पार्क के इलाके में कार्रवाई की गई है और 2,15,000 से ज्यादा यूनिट्स की बेजाबगी पकड़ी गई है। MNT सेंट्रल सर्कल की टीम जो है वो लेस्को हेडक्वार्टर में मदूब किया गया उसे और कामयाब कार्रवाई पर लेस्को चीफ की जानिब से शाबाश भी दी गई। CEO लेस्को की जानिब से टेस्ट असिस्टेंट M मोहम्मद रऊफ भट्ट की खुशी हौसला अफजाई की गई है और इन्हें शील्ड, तारीफी सनद और गुलदस्ता भी पेश किया गया है। इस्लामिया पार्क में घरेलू कनेक्शन के मीटर में बड़ी बेजाबगी सामने आई थी। 2011 के बाद PHTC डाटा भी जो है वो इस मीटर का दस्तयाब नहीं था और सिर्फ 6,433 यूनिट जो है वो चार्ज किए गए थे, मगर एक्चुअल जो मीटर रीडिंग थी वो जो है वो 2,21,445 निकली, जबकि 2,15,313 यूनिट जो है वो जेर इंतजार रखे गए थे, जो जदीद तरीके से जो है वो बिजली चोरी के जुमरे में आती है। इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की जानिब से कार्रवाई पर चीफ इंजीनियर T&S और MNT टीम को शाबाश दी गई। MNT सेंट्रल एक्सियन मोहम्मद अजमल, SDO मोहम्मद मंजूर और टीम को शानदार कारकर्दगी पर गुलदस्ते पेश किए गए। CEO लेस्को कहना था कि ईमानदारी से काम करने वाले अफसरान लेस्को के हकीकी हीरो हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा के ज़ेर सदारत इजलास DG औकाफ समेत टीपा और महकमा मवासलात के नुमाइंदगान की शिरकत। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि दरबार शेख अली हजवेरी के तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। दरबार का फ्रंट ड्रेन सिस्टम, अंडरपास का साइड हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत दाता दरबार तामीराती प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DG औकाफ, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ समेत टीपा और महकमा मवासलात और तामीरात के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि दाता दरबार तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। ये कहना था डॉक्टर एहसान भुट्टा का और उन्होंने मुतलका अफसरान को यह हदायत भी पास की है कि दाता दरबार के तरक्याती काम को जो है बर वक्त मुकम्मल किया जाए। जबकि सेक्रेटरी औकाफ का मज़ीद कहना था कि हुकूमत दाता दरबार के तरक्याती मनसूबों को बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। दाता दरबार के तरक्याती मनसूबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है। दरबार शरीफ के फ्रंट ड्रेन सिस्टम, अंडरपास का साइड हिस्सा और PCC वर्क समेत खाकी ढांचा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। दरबार के एतराफ की खूबसूरती और रसाई को बेहतर बनाने के लिए फसाड अप लिफ्टिंग का काम जो है वो भी जारी है। जबकि उनका कहना था कि ज़ायरीन को जदीद और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जी शुक्रिया हमजा खुर्शीद आपका।